پاکستان تحریک انصاف بیٹھے گی مذاکرات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ، ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کے اینڈ سے اوپننس بھی زیادہ دکھائی دے رہی ہے، ان کا بیہیویئر بھی تھوڑا سا زیادہ میگنانیمس میں کہوں گی دکھائی دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انپریپیئرڈ بھی دکھائی دے رہی ہے. وہ جہاں ایک وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے، وہیں پہ اپنے ڈاؤٹس بھی شو کر رہے ہیں. چلے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ. لیکن آج جو ہوا، جب یہ طے ہوا تھا کہ 2 جنوری کو آپ لکھے ہوئے اپنے مطالبات سامنے رکھیں گے، پھر مزید وقت مانگنا، پھر کہنا بانی پی ٹی آئی سے ملنا ہے، غیر سنجیدگی ہے، نیت نہیں ہے مذاکرات کرنے کی. کیا اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں؟ بہت شکریہ تاشرین شو پہ بلانے کا. لیٹس گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں، اول تو یہ حکومت نہیں ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے جو 9 فروری کو ڈبے بھرنے سے آئی. سینٹ انکمپلیٹ ہے. کے پی میں سینٹ کے الیکشنز نہیں کروائے گئے کے پی کے لیے. نیشنل اسمبلی میں خواتین اور مذہبی اقلیتیں نہیں ہیں، تو یہ ہاؤس پہ انکمپلیٹ ہے، انلیگل ان سم سینس. سنس ہم سب نے اوتھ لیا، جتنی بھی لیجسلیشن ان لوگوں نے زبردستی دھونس زبردستی سے کی، خاص کر 26 ترمیم، یہ سب وائڈ اور اللیگل ہیں ایب انیشو. یہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی لہنگا شہنگا بنا لیں گے بعد میں کہ جی نہیں تو ایسا ہے تو ایسا ہے، بٹ آئی کین شو یو اٹ از پیورلی اللیگل. اب مذاکرات، اگر آپ کو یاد ہے خان صاحب کے بارے میں لوگ اکثر کہتے تھے کہ خان صاحب کے گردن میں سریا، کسی سے بات نہیں کرتے، ملکی مفاد میں بات نہیں کرتے. تو فائنلی now that Khan Sahab is agreed to magnanimity, I think it آپ لوگوں نے دکھائی ہے؟ نہیں I think ادھر desperation ہے and I'll tell you why. اگر موروثی پاکستان میں ختم ہو جاتی ہے سیاست، اس میں نون والے، پیپل والے، بہت ساری پارٹی کے لوگ بہت خوش بھی ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نون میں پیپل میں اچھے لوگ ہیں، موسٹلی بیک بینچرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی ہیں، لیکن ان کو آگے کوئی نہیں آنے دیتا، کیونکہ یہ سسٹم ہی یہ بن گیا ہے، میں، پھر میرا بیٹا، پھر میری بیٹی، پھر اس کا بیٹا، رائٹ؟ سو یہ جمہوریت نہیں ہے. وی آر نیگوشیٹنگ with families, with dynasties, with corrupt dynasties. So you understand the inherent problem in مذاکرات میں. They are struggling. ان کو سروائیول چاہیے کرنٹ سسٹم کا. آپ نے ساتھ بیٹھ کر کیوں بریدنگ سپیس دی تھی، پھر کیوں بیٹھے مذاکرات؟ That is, I'm not sure entirely up to عمران خان صاحب. آپ کو پتہ ہے میں پولیٹیکل کمیٹی، کور کمیٹی یا نیگوشیشن کمیٹی کا حصہ ہوں نہیں، میں پارلیمنٹری پارٹی کا تو حصہ ہوں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ وقت کی وزاداری کے لیے یا نیگوسیشنس کو بنانے کے لیے، بچانے کے لیے، آگے لے کے جانے کے لیے آئی تھنک وہ ہمیں جونیئرز ہم جتنے بھی ہمیں نہیں بتایا جاتا ہے. آئی تھنک وہ اچھا ہی ہے، کیونکہ ہماری I mean I'm much older than pretty much everyone in this room, لیکن اسٹل وہ ایک ینگر اولڈر جنریشن کا ہوتا ہے. جو بندہ 5 10 دفعہ الیکٹ ہو کے آیا، ان کی ایک اور سوچ ہوتی ہے، اور ہم جیسے لوگ جو پہلی دفعہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، ہماری ایک اور سوچ ہوتی ہے، ہم مزاحمتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ مفاہمت ہوتی ہے. ایک بیلنس سے چلنا ہوگا. ہاکس اینڈ ڈوز ہر جگہ ہوتے ہیں. لیٹس سی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ٹائم دے ٹرائنگ ٹو بائی ٹائم. But what is PTI doing? جیسے میں نے ابتدائی میں جو بات کہی ہے، 2 مطالبات تو لکھ کے کاغذ پہ آج دینے چاہیے تھے نا، کیونکہ ایک ملاقات بھی ہو چکی تھی اگلی میٹنگ کے بعد. عمران خان صاحب سے وقت بھی مل گیا تھا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے غور فکر جو بھی آپ نے کرنی تھی وہ کر لیتے. ایز اے سیکنڈ اسٹیپ کچھ تو لے کے جانا چاہیے تھا. نہیں، بٹ اب فرسٹ اسٹیپ نہیں ہوا تو سیکنڈ اسٹیپ کیسے ہوگا؟ جب 2 ڈیمانڈ اس دن بیٹھے تو صحیح نا. نہیں، 2 ڈیمانڈز جو مانگی تھی کہ جتنے بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، جتنے بھی ہیں، اور دوسرا 26 نومبر اور 9 مئی کے جوڈیشل کمیشن کریں، CCTV فوٹیج دکھائیں کہ کون کس نے کس کو مارا. اگر ہم نے مارا ہوگا تو ہم کیوں بار بار CCTV مانگتے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں ہمارے خلاف ثبوت نکالو، ہمیں جو سزا دینی ہے دے دو، ہم ڈرتے تھوڑی ہیں. تو جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو آگے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ تحریری طور پر لکھ دیں. آج تو مجھے لگا کہ سارا وقت اس بحث میں ضائع ہو گیا کمیٹیوں کا دونوں کا، کہ ایک کہہ رہا ہے تحریری دے دیں، دوسرا کہتا ہے ہم نہیں دیں گے. یہ 2 باتیں آپ ٹاک شوز پہ بھی کہہ رہے ہیں، پریس کانفرنسز میں بھی کہہ رہے ہیں، فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے ہیں، لکھ کے کاغذ پہ بھی دے دیں. دیکھیں یاشوین، میں ہمیشہ جب بات کرتی ہوں ٹی وی شوز پہ ان پرٹیکولر، یہ ریفرین ہمیشہ دیتی ہوں کہ میں ذاتی رائے اپنی دے رہی ہوں. اور ذاتی رائے میں اس لیے دیتی ہوں کیونکہ اسد کیسر صاحب ہو گئے، سردار یہ صاحبزادہ حامد رضا ہو گئے، مولانا علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی بہت عزت کرتی ہوں، سینئرز ہیں، دنیا دیکھی ہوئی ہے. اگر خان نے ان کو کچھ کہا ہے اور اس کو فالو کر رہے ہیں، میں کبھی بھی ان کی وزڈم کو سیکنڈ گیس نہیں کروں گی، رائٹ؟ نیچرلی مجھے شاید لگے کہ اس پروسیس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے تھا. یو کین آلویز ہیو بیٹر اینڈ مور. میں خود ایز اے سینک، کیونکہ میں نے بہت کچھ بہت جلدی دیکھ لیا اور دل تنگ ہوتا ہے. سو میں دعا کرتی ہوں کہ میرے وطن کو کچھ نہیں ہو، میرے پاکستان کو کچھ نہ ہو، باقی اٹ ہارڈلی میٹرز. اینڈ آئی تھنک اگر نیگوسیشن کا ایک پوائنٹ ہے وہ سب پارٹیز کے لیے، جو چھپی ہوئے پس پردہ اور جو سامنے بھی ہیں، آپ کو ایک ہی چیز پہ ایگری کرنا ہے، از پاکستان اے پرائیورٹی اور ناٹ. اگر اس پہ اگریمنٹ ہو جاتی ہے
सब कुछ हमवार हो देखिए जाएगा. वो दूसरी वो साइड भी यही कह रही है कि पाकिस्तान इज अ प्रायोरिटी, तो हम बैठ रहे हैं. नहीं, आप भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज अ Can प्रायोरिटी, they- हम इनके साथ बैठ रहे हैं. I told you I'm a cynic. No, I don't agree. No, they are fighting for survival. They're not fighting for Pakistan. And you're Khan fighting for Pakistan. You're not fighting to get Imran Khan released because वो ये कह रहे हैं कि इनका तो 1 point एजेंडा है, NRO डील चाहिए इमरान खान के लिए. अलीमा खान साहिबा जब भी जेल से आती हैं पूछती हूँ उनको, मेक इट अ पॉइंट ऑफ कॉलिंग कि कैसे थे खान साहब, सेहत कैसी थी, बातें कैसे कर रहे थे. हमेशा कहती कि वो कहते हैं मैंने निकलना होता मैं अपने सज़ाओं से पहले निकल आता, मैं डील उससे पहले कर लेता. अगर मुझे डील करनी थी, वाई शुड आई हैव फेस्ड पनिशमेंट फॉर कमिटिंग नो क्राइम. 2 साल से मैं सजाएं काट रहा हूँ किस चीज़ के लिए? इसके लिए कि मैं डील करके निकलना, पहले कर लेता ना. जितने लोग शहीद हुए हैं, जितने लोगों ने मारे खाई है, बेहुरमती की है, घर तोड़े हैं, औरतों के साथ जो इन लोगों ने किया है, तो उसकी तो फिर सारे की ज़रूरत ही नहीं थी ना. अगर खान को करनी होती तो पहले कर लेते. एग्जैक्टली आप ये कह रही हैं. लेकिन फिर जो आप बात करें ना कि ये लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आपने कहा वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठ रहे हैं. जो खुद अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है वो आपको क्या देगा? फिर ये मुतालबात इनके सामने रख के आपको लगता है इनकी कैपेसिटी है? बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो तर्जुमान है उस कमेटी के, उन्होंने खुद भी ये कहा कि हमारी जो इस्तिताअत है या हमारा जितनी कैपेसिटी है उसको सोच के हमारे आगे मुतालबात रखें. कुछ चीज़ें तो हमारी डोमेन में ही नहीं आती, हम कैसे करेंगे? तो फिर को हुकूमत क्यों चला रहे हैं? घर चले जाए ना, रेस्टोरेंट खोल लें, कोई दुकान खोल लें, अस्पताल खोल लें. व्हाट आर यू डूइंग इन पार्लियामेंट इफ़ यू आर दैट हेल्पलेस? खान साहब ने क्या कहा था कि अगर मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट मिलता है मैं लूँगा ही नहीं, बिकॉज फीलिंग हेल्पलेस as the prime minister, as the governor, as the government is the worst thing on earth. अच्छा, by his domain he did not mean that he is helpless. He meant कि अगर कोई इमरान खान साहब है फॉर एग्जांपल, वो अगर जेल में है, एक लीगल प्रोसीजर है ना, वो ड्यू कोर्स फॉलो होगा तो हो जाए, तो सजा होगी या जजा होगी. तो खान अब मसला ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि सियासी असीरान को रिहा करें बशमूल इमरान खान के, तो वो कहते हैं कि ये मैंने तो नहीं करना ना, अदालतों ने करना. नहीं, बट खान साहब ने तो अपनी आज़ादी मांगी ही नहीं. ये तो हमारे कमेटी के जो मेंबर्स हैं, अल्लाह ब्लेस देम, उन्होंने कहा कि हमें तमाम जो बेगुनाह हैं सबको निकाल के दिए बशमूल इमरान खान. खान साहब ने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा. अलीमा पन उस दिन कहा था एक और रिकॉर्डिंग में कि आई थिंक इट वाज आउटसाइड अडियाला, कहती अगर इमरान खान आज़ादी चाहता तो वो निकल नहीं सकता क्या जेल से? उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, सजदा करना है ना, अपने रब के अलावा किसी और को करना है. सो आई डोंट बिलीव दैट. आई थिंक हो कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है. आई थिंक देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स विद इन व्हील्स, बिकॉज इस वक्त आई ट्रूली बिलीव यशवीन, दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज नॉट अबाउट PTI. आई एम टेलिंग यू, इट्स अबाउट what? Pakistan. How will Pakistan survive in this coming 20, 40, 60 years? Because हालात अच्छे नहीं हैं. लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे, कहते हैं जी बड़े देखे हुए, पहले भी देखे हुए. ऐसा नहीं है. You are for the first time at the brink of going belly up. और कोई बचाने वाला नहीं. आपके बेस्ट फ्रेंड्स मिस्टर अमेरिका, मिस्टर बाइडन जिसने हुकूमत गिराई, इतना तो करता कि हमें 20-30 अरब डॉलर ही दे देता कि ये लो गुलामी की कीमत. यूक्रेन को कितना पैसा मिला, इसराइल को कितना मिला, हमें तो फिटे मुंह मिला. तो अगर भिखारी ही बनना है और कुछ मिलना भी नहीं है, व्हाट आई एम सेइंग इज दीस आर टेरिबल नेगोशिएटर्स. ये कुछ नहीं नेगोशिएट कर सकते. गोरी चमड़ी देखते हैं, सूट देखते हैं, बड़े एक्साइटेड अच्छा, एक तो अभी आपने जो अमेरिका का हवाला दिया और जिस कॉन्टेक्स्ट में दिया, वो बाइडन, आई नो, बट वो हमें पता है, लेकिन अब बाइडन नहीं है तो अब अमेरिका ठीक है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अब आप लोगों की सारी उम्मीदें उसी अमेरिका से लग गई हैं जिन पे आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने निकाला. ये बहुत इंटेलिजेंट ये लोग गेम खेलते हैं, स्मोक्स एंड मिरर्स का. टेल यू, मैं उस दिन देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी. ये जियो न्यूज़ जिस तरह इनकी माशाल्लाह है नेचर, हमेशा मड स्लिंगिंग तो करते हैं. इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले काबीना का एक मेंबर है रिचर्ड ग्रेनेल, उसकी ज़ाती निजी ज़िंदगी पे कोई कमेंट किया. अगर तो वो मुसलमान होता, पाकिस्तानी होता तो मैं समझ आती, दैट मेक्स सेंस. लेकिन अगर वो अपने आप को दहरिया कहता है या अपने आप को कुछ भी कहे और उसके मुल्क में जो वो कर रहा है उसका खिलाफ कानून नहीं है, उसके दीन में खिलाफ कानून नहीं है, तो अगर जियो न्यूज़ ने यही खबर उछालनी थी तो कीचड़ किस पे आया? राइट? अच्छा, वो कीचड़ आया, डाइवर्ट हुई ना हमारी तरफ, कीचड़ भी हुआ, फिर उस पर स्टूपिड ट्वीट्स भी चली, स्टूपिड बातें भी चली. आपने किसी PTI के MNA को देखा या MPA को उसको एंडोर्स करे या उसके खिलाफ बात करे? हाँ, जो PTI के सपोर्टर्स इधर उधर लड़े जा रहे थे, वर्कर्स थे, जो भी थे, नॉट सिंगल पर्सन टेक्स्टेड अगेंस्ट और फॉर. अब इंटरेस्टिंगली इसी ख्वाजा आसिफ ने कहा था हम अमेरिका के वेंटिलेटर पे हैं. तो अगर आप अमेरिका के वेंटिलेटर पे, तो अमेरिका तो अभी भी अमेरिका है. अमेरिका हमेशा वो करेगा जो अपने मुल्क के लिए बेहतर होगा. लेकिन अभी भी जो टेंशन इधर आई ना, उसमें आपने एक चैनल का नाम लिया, उससे ज्यादा ख्वाजा आसिफ साहब की ही ट्वीट थी जिसने ज्यादा और अटेंशन, वो जो इजराइल कनेक्शन और एंटी सेमेटिक और सेमेटिक कनेक्शन और जो भी वो, आप इफ यू रिमेंबर, हाँ, इमरान गोल्डस्मिथ, सो वो दैट, उसका भी जवाब रिचर्ड ग्रेनेल का आ गया. मैंने देखा ट्विटर पे कह रहा था कि मैं तो गोल्डस्मिथ को जानता भी नहीं. रिचर्ड ग्रेनेल के क्योंकि मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पूरी काबीना को कि कोई ट्वीट नहीं करेगा.
Excellent. So अब जो है मेरा नहीं ख्याल के मैं वो जो पॉपुलैरिटी मिल रही थी ग्रेनेल साहब को, आई थिंक कुछ अरसे के लिए अब जो है रुकने वाली है. अच्छा, अगेन कमिंग बैक टू द सिचुएशन राइट नाउ कि आप लोग कहते हैं वो इख्तियार रखते हैं नहीं रखते, आइदर वे आप लोग फिलहाल उनके साथ मेज़ पर बैठे हुए हैं बातचीत करने के लिए. अली अमीन गंडापुर साहब अंदर जब जाते हैं मुज़ाकराती कमेटी के अंदर तो जो हमें खबरें मिलती हैं वो तो होता है कि बड़ा अच्छा मूड होता है. बाहर होते हैं तो कहते हैं हम एहतजाज करेंगे 2025 में, या ये रहेंगे या हम रहेंगे, और सो ऑन एंड सो फोर्थ. और फिर साथ में कुछ ऐसे सीनियर पीटीआई के अरकान जो ये भी कहते हैं कि नहीं हमें बड़ी उम्मीद है पीटीआई के जो मुज़ाकरात है गवर्नमेंट के साथ वो कामयाब हो जाएंगे. हम कंफ्यूज हो गए हैं कि पीटीआई क्या समझती है इस वक्त क्या होगा. याद रखें तशवीर, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी मुश्किल से सीखी, जब कोई आपको कह रहा हो ना कि मैं ऐसा हूँ तो बिलीव हिम और हर, मान जाओ. अगर कन्फ्यूजन आपको हो रही है ये डिलिबरेट है. एज आई सेड अर्लियर, कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, मतलब कुछ और है. चार डिफरेंट सिनेरियोज हैं. आप अपनी तरफ से जाने वाले लोगों को भी डाउट नहीं कर रही हैं? नहीं, वो तो खान के चुने हुए हैं. आई डोंट डाउट एनीवन खान चूजेस. मैं कुछ और कह रही हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ये सब आई वॉश लग रहा है टू सम अदर एंड. वो अदर एंड क्या है मुझे नहीं पता. ऑल आई नो इज़ कि पाकिस्तान भी किसी की गोली के निशाने पे था, बट अल्लाह का शुक्र है पिछले 3 साल जिस तरह पाकिस्तानी अवाम ने मार खाने के बावजूद कभी एक दफ़ा हाथ वापस नहीं उठाया. औरतों की बेहुरमती, माओं की, बच्चों की वापस हमने एक दफ़ा हाथ नहीं उठाया. उठा सकते थे, नहीं उठाया, क्योंकि ये कानून के मुताबिक एलिजिडली कर रहे थे. हम मार खाए जा रहे थे, वरना मार खिलाना हमें भी बहुत अच्छा आता है. इशू ये है कि वी शोन कि डोंट पुश अस. ये पाकिस्तान के लिए हम सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं. इमरान खान हमारा लीडर है. जो मुज़ाकराती प्रोसेस हो रहा है अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ यू ट्रस्टेड, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब ऑन बोर्ड है उसके साथ. आई ट्रस्ट इमरान खान and I trust his team. That's about it. That's why you don't trust the rest of it. I told you I'm a cynic. I don't अच्छा, trust मुझे ये anyone. बताएं कि बानी पीटीआई जो है उनको बनीगाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई है, किसने की है? उसमें भी अगेन तजाद है. बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा इस वक्त क्योंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं. अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सैफ वगैरह कंफर्म कर रहे हैं कि हुई है पेशकश. मुझे तो इतना पता है कि जो अलीमा खान साहिबा जब जेल से निकली कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को जो ऑफर हुई थी टू मूव आउट ऑफ जेल टू बनीगाला, जमान पार्क, व्हाटएवर, पेशावर सेंट्रल जेल और सीएम हाउस, ही हैज रिफ्यूज्ड कि जब तक मेरे कैदी नहीं निकलेंगे मैं भी नहीं ऑफर हुई है. बिकॉज फैसल चौधरी ने आज फिर कंफर्म किया कि वो कह रहे हैं कि मुझे खुद बानी ने कहा है कि मुझे कहा गया कि आप बनीगाला मुंतकिल हो जाएं. तो अलीमा आप यही कह रही हैं, अलीमा खान साहिबा यही कह रही हैं कि उनको ऑफर हुई थी और वो उन्होंने टर्न डाउन कर दी. एस्टैब्लिशमेंट से ऑफर आई थी, गवर्नमेंट से आई थी. दैट आई डोंट नो. तो एक ही चीज़ है, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट आजकल एक ही चीज़ है. आजकल एक ही चीज़ है. बस शरीफ ने खुद नहीं बोला कि मेरे और पता नहीं जो भी है बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है. अच्छा, बैरिस्टर गौहर ने कुछ एतराफ़ किया है. वो कहते हैं 2024 जो है वो हम अपने अहदाफ नहीं हासिल कर सके. व्हाट डू यू थिंक ही मीन्स बाय दैट कि इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सके? He could mean a number of things, but I think जो पब्लिक मूड होता है ना, आपने उसको गेज करना होता है. पब्लिक इस वक्त गुस्से में है. हम सबको इतने वोट पड़े हैं, सिर्फ पीटीआई के नहीं, मुझे नून के भी पड़े हैं, मुझे एएनपी का पड़ा है, जीओआईएफ का भी पड़ा है, क्योंकि लोगों को तब चढ़ी हुई थी केपी में इन पर्टिकुलर कि 10 साल हमें सेहत कार्ड मिला और 2 साल केयर टेकर ने उठा लिया. वो गरीब लोग हैं. आजकल सगा भाई दूसरे भाई की जेब में 10 लाख नहीं डालता. आपने हमारे जेबों से कैसे ले लिए? तो लोग बहुत गुस्से में थे, क्योंकि कभी भी किसी अस्पताल में ये नहीं हुआ कि आप जाएं एक्सक्यूज मी और सेहत कार्ड के साथ ओते दे कि जी मैं तो पीटीआई को वोट दूंगा. ऐसे नहीं होता. आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, आप केपी आईडी कार्ड होल्डर हैं, आपकी ट्रीटमेंट होगी. तो लोग इस वक्त तपे हुए हैं कि इमरान खान जेल में नहीं होना चाहिए. ये जो चोर हैं गवर्नमेंट में नहीं होने चाहिए. पाकिस्तान में जो पड़ा चिनार में जुल्म हुआ, शिया सुनी फाइट कराने की कोशिश की गई, जुल्म किया गया, नहीं होना चाहिए था. अब आज कुछ और बातें पता चली, वो तो खैर बाद में बताऊंगी आपको. लेकिन ऐसे सारे जुल्म हुए पाकिस्तान में पिछले 3 साल में कि अवाम अब तंग आ गई. वक्त वैसे बस खत्म हो रहा है. और क्या बातें पता चली आपको पारा चनार के हवाले से कॉन्टेक्स्ट में आप बात करी? जी, कि अब जो ये सीरिया से आ रहे थे, सीरिया में जो होते थे ना लोग फॉर हायर, वो अपेरेंटली पड़ा चिनार और उधर पहुंच गए थे कुरम. सो शियों पे भी जो अटैक किया अहले तशी पे, वो भी उधर से हुआ. और इनको तफकीरी बोलते हैं, अल्लाह नोज बेस्ट. और जो अहले तसन्ना पे हुआ वो भी वो लोगों ने किया. यानी इलाके को भड़काने की कोशिश हो रही थी. थैंक गॉड सीएम, केपी, द एंटायर कमेटी, उन सब ने वहाँ पे बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन सब ने सीज़फायर हो गया है. अच्छा, लाइक आई सेड वक्त में इसलिए आपको इंटरप्ट करी क्विकली. 19 सिविलियंस को जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया गया था उनकी आज सजाएं माफ़ कर दी गई आर्मी चीफ की तरफ से. हाउ डू यू लुक एट दिस जेस्चर? ये तो एक कानून और आइन सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त ही नहीं देता. इट वाज ऑल अ फार्स. सज़ा भी फार्स थी, माफ़ करना भी फार्स है, ट्राई करना भी फार्स था. सज़ाएं तो हो गई थी ना, माफ़ कर दिया गया, लोगों को रिहा कर दिया गया. तो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ को पॉजिटिव कह नहीं देना चाहिए, मान नहीं लेना चाहिए. आप मुझे ये बताएं, आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाएं, वो क्रिश्चियन है, आप क्या उसको अच्छा फेल समझेंगी? फिर वो दोबारा चला जाए क्रिश्चियनिटी में, फिर वो अच्छा होगा कि ये अच्छा होगा? ये नहीं कर सकते. ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं. आइन, कानून, दीन, इसमें आप जितना हाथ मारोगे ये गंद होता जाता है. हर चीज़ को अपनी जगह पे छोड़ देना चाहिए. आप ट्रायल को भी नहीं मानती, आप सजा की माफ़ी को भी नहीं? जब मेरा आइन नहीं मानता, हाँ.